फीमेल साड़ी ब्लॉगर हिना खन्ना कालरा ने लोधी क्लब में आयोजित किया एक समारोह और महानगर की महिलाओं को सिखाए साड़ी बांधने के अलग अलग अंदाज। इस मौके पर शिवानी, चीना मरवाहा और हरिंदर कौर तंजल सहित बड़ी गिनती में महिलाओं ने भाग लिया। लव सिद्धू, वॉइस ऑफ एशियंस, लुधियाना। Now this is something which I just love. If you had seen in some of the formal sarees, it comes very beautifully like this. Yeah. So the key is you bring it from here. Copy side and okay. We'll do it with some other saree on which we are planning a different way. So we just set it here and we'll start the pleating. It's just my watch, kohl in eyes and nude lips. It does work. It is the best. And secondly, if you like makeup, that looks the best on you. So a lot of people have started messaging me कि इसके साथ कैसा makeup है ना? With a short, just tap the first button. It looks very neat, very smart. Do not leave it open, then it does not look that. It does not give that look. The rest is your choice. Here. Alright. So again, here you see if you are styling your sarees with top or blouses, the length may or may not matter depending upon the tray. Sometimes I tried one saree with this long kurti also, but to me this is the appropriate length. थोड़ा सा लंबा होता है, it may. Alright. So belt का करना है. इसमें let's do a proper one. Again, you might have seen mamas doing it this way, so you can do it this way as well, and you can do it this way as well. So it all depends upon you. Let's do it. Like that. Sometimes. And we have seen some of the girls wearing it. Two different colors in this saree. One was this black, and other one was peacock blue. I am yet to get it ready. I got two. Okay, so this is the area which is with us a lot. Alright, so what we do with this one is we pleat it from the end, first end. अब यहाँ से सिंपल जैसी हमारी प्लीट्स होती हैं, you can pleat it. Pleats, count करें 1, 2, 3, 4, 5, 6. It depends how you want to have it. You just have it. Can you put it? Playful and bold. Again. घूम जाओ ना, हौली हौली करके घूमी जाओ। हाँ, सारी बैग बुक सारी दिखेंगे। घूम जाओ तुम। ठीक है, ओके। Today I am here in Lodhi Club attending a workshop on Desire to Drape, which is about draping different styles of sarees, and it is organized by a very pretty lady, Blessed Vintage Soul. You can check out her page on Instagram. And here I have learned about 8 to 9 different styles of wearing a sari, and I'm going to try it in my friend's wedding or anywhere, any occasion I go, because I really learned how to drape different saris. You can check out the one I am wearing and the other two ladies standing around me. You can try a sari with a belt or a stitched sari in a different style, or you can go pair it with a jeans. And you can check more details on her page, Instagram, Blessed Vintage Soul. Thank you. My name is Shivani, and today we are here at Lodhi Club. I feel so privileged to attend this workshop named as Desire to Drape. In this workshop, we learned to style many saris on us. No matter of what size we are, we always get encouraged. This sari is an inspiration. Our norms and culture teaches us to not forget what we belong to. So I believe I would like to thank Miss Hina ma'am, who showed her talent today. She's a very blessed soul, and her Instagram profile also says the same, the blessed. I am China Marwaha. I am a fashion stylist and a makeup artist. I am from Ludhiana.
Today we are here at Lodi Club and event organized by Hina Khanna. She is teaching amazing styles of sari draping and I am honored to be a guest on the show. And she is doing wonders, changing the trends of wearing saris. It's wonderful. Thank you. Hello, my name is Hina Khanna Kalra. I am a professor, full-time professor in a renowned college in Ludhiana. That is my profession, and by passion I am a sari blogger, and I'm really proud to mention that I'm the first sari blogger in Punjab, and the feedback and the response which I'm getting from the females over here in this city, Ludhiana, and the state throughout is immense. I cannot describe the same in words. This is my initiative that I wanted to bring drapes, I wanted to bring sari back to this state, specifically Punjab, because we are not used to seeing people or girls here in saris. So this is my initiative so that girls can get inspired from each other by wearing sari, and I'm so happy that before the workshop, this workshop Desire to Drape, a lot of my friends they were already excited about wearing the sari, and today I see the enthusiasm in them. All of them, they just love it, and they are all looking forward to wear saris more often in their day-to-day routine. So this is my motto, to bring sari to Punjab and have a lot of females wearing saris and feeling comfortable in the saris. So I hope my dream comes true, and one day whole of the Punjab knows different types of drapes and they start wearing it. That's about me. Thank you so much. Thank you. परवाज एनजीओ के आनंदी कांत और ईशा धवन ने अपने साथियों सहित घर घर जाकर लोगों से रद्दी इकट्ठी की। उनका मकसद है इसे बेचकर होटल की के पास स्लम एरिया के बच्चों के लिए बाथरूम बनाए जाएं ताकि वे भी स्वस्थ जिंदगी को जी सकें। लव सिद्धू, वॉइस ऑफ एशियंस, लुधियाना। हेलो एवरीवन, दिस इज़ ईशा धवन फ्रॉम प्रवाज एनजीओ। हमने आज एक इनिशिएटिव लिया है रद्दी सफारी करके, जिसमें हम लोगों से रद्दियाँ इकट्ठी कर रहे हैं और जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको हम इकट्ठा कर रहे हैं, और जो भी वेस्ट मटेरियल बेच के हमें जितने भी पैसे इकट्ठे होंगे हम उस पैसों से स्लम एरियाज़ में टॉयलेट्स बनवाना चाहते हैं, क्योंकि जो गरीब लोग हैं, जो बिल्कुल ही जिनके पास कोई फैसिलिटीज़ ही नहीं है, जिनको कुछ पता ही नहीं है कि ये बाथरूम खुले में नहीं जाना है या शौच जो है एक बंद जगह पे इस्तेमाल होना चाहिए, उनके लिए हमने एक अवेयरनेस किया था, जिससे हमें पता चला कि वो खुले में शौच करते हैं अभी भी। और तो हमने एक ये स्टेप उठाया है सारे यंगस्टर्स के साथ मिलके, हमने एक वॉशरूम्स बनवाने का उनके लिए। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आई एम अनादिकांत, आई एम फ्रॉम परवाज एनजीओ एंड आज हमने यहाँ पे रद्दी सफारी करी है। रद्दी सफारी इज़ एक इनिशिएटिव जिसके अंदर हम सारे जितने भी हमारे लोकल लुधियाना के अंदर हम उन सबको कहते हैं आप आके अपनी रद्दी डोनेट कीजिए, एंड आफ्टर कलेक्टिंग दी ऑल द रद्दी हम उसको बेच देते हैं। बेचने से जितना भी हमारे पास फंड रेज होता है, वी यूज़ इट फॉर अ कॉज। करंटली जिस कॉज के लिए हम ये रद्दी कलेक्ट कर रहे हैं, दैट इज़ टू बिल्ड अ वॉशरूम इन अ स्लम नियर कीज होटल, जहाँ पे हमारे इंटर्न्स इस टाइम पे काम कर रहे हैं। सो ड्यूरिंग द इंटर्नशिप दे फेल्ट कि वहाँ पे जो वॉशरूम है दैट इज़ नॉट प्रेजेंट, एंड उनके लिए वहाँ पे अवेयरनेस करते करते दे फेल्ट कि हमें वहाँ पे वॉशरूम कंस्ट्रक्ट करना चाहिए। सो वी आर डूइंग दिस फंडरेजर टुडे इन किप्स मार्केट, एंड वी वांट हमारे साथ जितने और भी ज़्यादा यूथ है एंड जितने बाकी सारे हाउस होल्ड्स हैं वो आके हमारे पास डोनेट करें, एंड आगे इनके एक पर्टिकुलर कॉज के लिए ही एक वॉशरूम कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमारी हेल्प करें। थैंक यू सो मच। लुधियाना मैनेजमेंट एसोसिएशन की तरफ से सेहतमंद जीवन पर एक सेमिनार का आयोजन होटल पार्क प्लाजा में किया गया। इस मौके पर हीरो हार्ट के सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर विश्व मोहन ने दिल के रोगों से बचने के संबंधी मुख्य तथ्यों पर प्रकाश डाला। एलएमए के प्रधान कमल वडेरा ने उनका
धन्यवाद किया। इस मौके पर डॉक्टर संजीव उप्पल भी उपस्थित थे। लव सिद्धू, वॉइस ऑफ एशियंस, लुधियाना। तो हम अंदर से चाहते हैं कि हमारा यूरिक एसिड ज्यादा है, रिपोर्ट कि हम दवाई लें और ठीक इम्यून सिस्टम है। मैं ये आपको सही कितने सालों से मरीजों को मिल रहा हूँ, तो आपको ये सही कि मेरा यूरिक एसिड जरूर है। ये यूरिक एसिड इसने दिमाग में बिठाया ये पता नहीं है, बट यूरिक एसिड की दवाई तभी देनी चाहिए, 3 कंडीशनें हैं, जब आपको और कोई कारण नहीं मिल रहा कि यूरिक एसिड ही आपको पेन कर रहा है, बॉडी एक्स कर रहा है, नंबर 1। दूसरा, यूरिक एसिड की वजह से स्टोन बन रहे हैं या आपके जॉइंट में स्वेलिंग आ रही है, अंगूठे में स्वेलिंग आ रही है, हाइपर यूरेसीमिया हो रहा है। 3 टाइम है जब आपको यूरिक एसिड का ट्रीटमेंट लेना चाहिए। अगर 6, 7, 8 है तो उसको टारगेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार तो ये 10 तक भी हो जाता है, 10 से 12। लेकिन अगर बहुत हाई है, मान लो 10 और 12 से ज्यादा है, देन इट कैन कॉज किडनी फेलियर समटाइम, देन यू शुड टेक द ट्रीटमेंट। और फाइबर्स ऐसे पंजाब में मेरी नॉलेज में नहीं है कि पंजाब के लिए डिफरेंट क्राइटेरिया, इसका मुझे मालूम नहीं कि पंजाब में है या नहीं, बट जनरल लोगों को काफ़ी फायदा होगा बिकॉज ऑफ मेरा पर्सनल मानना है, नॉन मेडिकल पर्सन, मेन एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, पराली जला रहे हैं, जो बाकी तो देख के लगाने का जो सिस्टम है वेरी वेरी बैड। ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ही जो बीमारियां इन्फेक्शन बढ़ रही है, वो भी कंट्रोल करना पड़ेगा। डॉक्टर अपना रोल कर रहे हैं, डॉक्टर की शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है, जो सानू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सीटां बढ़ा के सब तो बड़ी न्यूज़ है कि DNM मैडिकल कॉलेज इंडिया का नंबर 1 कॉलेज हॉस्पिटल डिक्लेयर किया गया है 21st इन बॉम्बे हयात होटल के विच कि नॉन मैट्रो सिटी का नंबर 1 हॉस्पिटल इन DMC लुधियाना। शायद तुहानूं कल TV भी देखा होगा। तो लास्ट 2 मंथ बैक तो सानूं 14th रैंक ऑफ मैडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रैंक दिता है, द फर्स्ट एंड प्राइड ऑफ पंजाब। नो कॉलेज कैन बी डिक्लेयर बिफोर द फर्स्ट कॉलेज ऑफ DMC। ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੈਲਦੀ ਲਿਵਿੰਗ ਐਂਡ ਹੈਲਦੀ ਨੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹਾਰਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ, ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਅਧਰੰਗ ਹੈ, ਸਟ੍ਰੋਕ ਵਗੈਰਾ, ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਥ ਦਾ ਬਰਡਨ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ। तो इसे करके कम से कम जो 6 करोड़ बंदा है हर एक साल पावर्टी लाइन तो नीचे चला जाता है, क्योंकि वो को दाखिल होने वास्ते जब वैसे इन्नी पावर्टी है और गवर्नमेंट इन्नी स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं कि उन्होंने ट्रीट नहीं कर पा रहे। तो बेहतर तरीका वो वास्ते यही है कि जे असी सारे बंदे प्रिवेंशन वाल ज़्यादा ध्यान रखिए। जिदा सर ने कहा कि आप जे पोल्यूशन कंट्रोल कर लिए तो काफ़ी बीमारियां जी इन्फेक्शन है, वाटर बॉर्न डिजीज़ है, उन्होंने कंट्रोल कर सकते हैं। हर एक साल जिदा डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, इस तो बचा जा सकता है। दूसरा जो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं जिदा कि ब्लड प्रेशर, शुगर, बाकी चीज़ा ने, जे असी अपने सिम्पटम जो अपना लाइफ स्टाइल उन्होंने कंट्रोल कर लिए, जिदा मैंने कहा कि जिदा आप चीनी है, मिठा जिदा है या नमक है, इस चीज़ को कंट्रोल करिए, वेजिटेरियन डाइट है और सही तरह की एक्सरसाइज असी करिए या साइकिलिंग करिए। प्लस ये अज स्पैशल चीज़ असी ये यूज़ की है, जो प्राइम मिनिस्टर की भी सोच है कि जो इंडिया की सॉफ्ट पावर है जिहदे योगा, आयुर्वेदा और नैचुरोपैथी भी आती है। जे असी किसी इंसान को यह ना सोचिए कि उन्होंने एलोपैथी की तरह नाल ही ट्रीट करना है या अपनी साइंस नाल ही ट्रीट करना है। साडा मतलब ये होना चाहिए कि पहला तो डिजीज़ प्रिवेंट करना है, दूसरा कोई भी साइंस है जिहड़ी कि पेशेंट को फायदा करे, इन्हूं होलिस्टिक मैडिसन कहने हैं कि वह कंसैप्ट जोड़ा है वो अजकल ज़्यादा प्रचलित है और जो अपनी कंट्री का सब तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तो उन्होंने ही असी अगे प्रोपेगेट करना चाहते हैं। तो साडा हॉस्पिटल भी ये वास्ते 2-3 खास चीज़ां कर रहे हैं। एक तो योगा नू मैडिसन के नाल जोड़ रहे हैं, सो ताकि लोगों की जी पेशेंट की वैलबींग जी है वो ज़्यादा बेटर हो। दूसरा हॉस्पिटल के इन्नी इंफ्रास्ट्रक्चर हैगी है कि तभी इन्होंने 14th रैंक मिले सानू कि वो असी डिजीज़ को जल्दी डिटेक्ट कर सकते हैं तो मॉडर्न फैसिलिटी नाल अफोर्डेबल कॉस्ट से जो ट्रीट भी कर सकते हैं। दोनों कॉम्बीनेशन है, बट मेन चीज़ है कि जे असी प्रिवेंशन करिए तो आप काफ़ी डिजीज़ है जोड़े आप बच सकते हैं। पर्टिकुलर जो यंग लोग लड़के हैं जिदा तुम जिदा हो यंगस्टर हो, उन्होंने एक चीज़ मुहिम चलानी चाहिए है कि आप प्रिवेंशन वाल ज़्यादा एक्टिविटी ज़्यादा रखिए, खाना पीना कंट्रोल से रखिए। Committed he will become excellent. Ultimately he refused to be, I cannot come. He sent his junior to me. So you people are flooded with all type of pressure in the profession. So why not just study and Dr. Vishamo, why not to start such a project in Ghana also? We are there to support the project with a big number of people you want. पक्षी सेवा सोसाइटी ने
इसके प्रधान अशोक थापर के नेतृत्व में रख बाग में पौधे लगाए। इस मौके पर मुख्य तौर पर पधारे इंस्पेक्टर अमनदीप बराड़ को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान अजय सिद्धू, चंद्रशेखर सोहता, सुभाष सोंधी, कमल वालिया विशेष तौर पर उपस्थित थे। कैमरामैन लव सिद्धू के साथ सुखविंदर सिंह, वॉइस ऑफ एशियंस, लुधियाना।